Yes. Okay, ठीक है. So we are starting with gravitation, objective level questions. I hope you all must have seen the videos on Friday, which the questions which were solved on the recorded lecture were introductory exercises only. So I had sent two videos on Friday. Hello, याद है ना आप लोग को? So Yes, sir. whatever numericals were solved inside, they were introductory only. So you need not do extra something. They were solved introductory only. So we can continue with objective. अगर आप जाके देखेंगे तो they were introductory only. उसको copy कर लेना. And today I'll be starting with single correct options. There are total I think 49 questions. So I'll be doing 25-30 questions today. उसके आसपास. And then next time Wednesday को second part and then subjective and then Friday को complete हो जाएगा ये. Okay, ठीक है. So शुरू करते हैं. एकदम easy chapter है. Once you know the synopsis, the formula, checklist is in front of you. Synopsis you all are thorough with, so chapter easy है. A satellite is orbiting close to the Earth and does not fall towards the Earth's surface. Why doesn't it fall towards the surface? Who provides the necessary centripetal force? Because अगर वो घूम रहा है तो centripetal force होना चाहिए. तो who is providing the centripetal force? Hello. Gravity. हाँ. Can I say the gravitational pull provides the necessary centripetal force? बराबर है ना? If this is the Earth and if this is the satellite and if it is moving around the Earth's surface, आपको पता ही है कौन सी स्पीड से जाएगा. There will be speed is vc. So there is a force over here. This force is the gravitational force which is providing the centripetal force. तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि g बड़ो m छोटो m by r square will become m vc square by r. m और m कैंसिल हो जाएगा, r और r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको मालूम है ना, इट इज gm by छोटो r. हेलो, याद है ना? ये ऐसे ही एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ मैं, कह ना. Yes. तो ये सब चीजें हैं. क्वेश्चन नंबर again we'll come to question number 4. A research satellite of mass 200 kg. So छोटो m is 200 kilogram orbiting in an average radius. So छोटो r is given as 3r by 2 when the radius, where r is the radius of the earth. Assuming that the gravitational pull on mass of 1 kg on the earth's surface is 10 newton. The pull on the satellite is how much? Okay, now listen to me, pay attention over here. Question number 4 says, देखिए मेरी बात सुने. Assuming that the gravitational pull on the 1 kg is 10 newton. The pull on the satellite मतलब हमको फोर्स मांगता है. फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा is m into e. हेलो, do you know it? Yes, sir. Yes or no? अच्छा ठीक है. अभी क्या बोलना चाह रहा है कि एक बॉडी अगर अर्थ के सरफेस पर है 1 kg. देखो ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो अगर 1 kg इधर रखा है डिस्टेंस ऑफ r पर, तो कितने फोर्स से खींचा जा रहा है बेटा? कितना दिया है फोर्स? 10 Newton. 10 न्यूटन दिया है. ठीक है ना? ओके. कैन आई से, इसका दूसरा भी मेथड रहेगा, मैं ये मेथड से कर रहा हूँ. कैन आई से इसका ई जो रहेगा वो रहेगा एफ बाई एम. जैसे एफ इज एम ई, एफ इज 10, एम इज 1, तो ई को लिख सकते हैं 10 न्यूटन पर केजी. एंड कैन आई से इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ बड़ो आर. बराबर है. ये केस 1 बना. बट हमारा सैटेलाइट इधर थोड़ी है. हमारा सैटेलाइट कितने दूरी पर है? हेलो, कितनी दूरी पर है?
3r/2। 3r/2 है, बराबर है, ये r2 पकड़ता है। और इसके ऊपर क्या मांग रहा है, ये फोर्स मांग रहा है, बराबर है। ओके, एंड द मास ऑफ द सैटेलाइट इज 200 kg। ठीक है, सो सबसे पहले इसका ई निकालते हैं। ई, यू नो, ई इज इनवर्स टू आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही रहेगा ना, gm/r²। हेलो, यस और नो सर? हेलो, मैं ये मेथड से कर रहा हूँ। आई टेल यू अनदर मेथड आल्सो व्हिच विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। कैन आई से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी E1/E2 will become R2/R1 the whole square. So what is E1 given? E1 is given as 10. E2 I don't know. R2 is given as 3r/2/r the whole square. तो यहां से E2 आपको कितना मिलेगा? If you see, this r and this r will cancel, will become 9/4, will become 40/9. Hello, yes or no? Yes, sir. And F कैसे लिखेंगे? F2 कैसे लिखेंगे? M2E2 ना? How much is M2? 40/9. 8,000/9 हो गया, बराबर है क्या? 9 8 से 72 होगा, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर यही रहेगा, बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. अच्छा, इसका दूसरा मेथड कोई बता सकता है? एकदम इजी है दूसरा मेथड, ये तो हाउ टू डू? Calculate GH. हाँ नहीं, F इज इक्वल टू gmm/r²। हेलो, ये एकदम आसान है। हेलो, F इज इक्वल टू gmm/r²। कैसे लिखूंगा मैं? आई विल राइट दिस एज F1/, हेलो, F1/F2। G बड़ो M तो दोनों का सेम है। कैन आई राइट दिस एज M1/M2 into R2/R1 the होल स्क्वायर। हेलो, आर यू गेटिंग इट? अरे भाई बोलो। तो F1 कितना है? 10 है। F2 का पता नहीं है। M1 कितना है बेटा? 1 kg। 1। M2 कितना है? 200। ये कितना डिस्टेंस पर है? 3r/2। हेलो, कुछ समझ आया क्या? कुछ समझ आ गया आप लोग को? Yes, Yes sir. or no? So this is how you get F2 889। ये और भी आसान है। ग्रेविटेशन इंटेंसिटी से करो या फोर्स से करो। फोर्स इज gmm/r² ना। सो आई थिंक सो मेथड 2 इज बेटर ना। आप लोग खुद से अपना मेथड बना के ट्राई कर सकते हो यार, इंस्टेंटेनियसली जो आपके दिमाग में आएगा। ओके, दैट विल बी बेटर। खाली मेथड सही होना चाहिए, बाकी तो यू ऑल नो हाउ टू मैनिपुलेट। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 पर आता है। टू बॉडीज ऑफ मास बड़ो m and छोटो m are placed at a distance apart. The gravitational potential at the position where the gravitational field is 0 is V. Okay, pay attention to me. कैसे करना है? देखो, pay attention to me है, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। Everyone just pay attention over here. देखो इधर, ये चीज लास्ट टाइम मैंने, याद है, एक लिखकर चीज भेजा था ग्रुप पे, आपको याद रहेगा, लास्ट प्रीवियस फ्राइडे को, शायद फ्राइडे या थर्सडे को। दैट इज द सेम सम वी हैड सॉल्व्ड इट इन द नीट, नाउ इट इज कम टू द जेई सेक्शन। तो क्या बोल रहा है, चाह रहा है, ये कैपिटल एम है एंड ये स्मॉल एम है। सपोज डिस्टेंस दोनों के बीच में डी है।
बराबर है? हेलो, आई ऑल देयर? Yes, sir. ध्यान से सुनना। अच्छा, कौन सी पॉइंट पे पोटेंशियल ही इज आस्किंग? कौन सी पॉइंट पे पोटेंशियल ही इज आस्किंग? वेयर? हु इज जीरो? फील्ड। फील्ड इज जीरो, मतलब दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट रहेगा P at intensity at this P is zero. Hello, are you getting it? Baba. So let this distance be x from here. तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा? d minus x। एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। So can I say what is the formula for gravitational intensity? भाई थोड़ा प्लीज, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? gm by r square। So can I say at this point the g बड़ो m by distance square is balancing g छोटो m by distance square? हेलो, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द मास होता है ना। इसका E1 रहेगा और इसका E2 रहेगा। एंड कैन आई से दिस E1 इज बैलेंसिंग दिस E2, कैंसिल कर रहा है। हेलो, कुछ आना बोलो। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। हेलो, यस और नो? सो कैन आई से E ड्यू टू बड़ो m इज बैलेंसिंग E ड्यू टू छोटो m? कैन आई से द रिजल्टेंट E का फॉर्मूला है g बड़ो m बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज x स्क्वायर, एंड यहाँ पर हो जाएगा g छोटो m बाय d माइनस एक्स द होल स्क्वायर। हेलो 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 हेलो, यस और नो? यार बोलो, करेक्ट है? ये जी तो वैसे ही उड़ गया। कैन आई टेक स्क्वायर रूट ऑन ऑल साइड? ये हो जाएगा m बाय रूट m बाय एक्स इज इक्वल टू छोटो m बाय d माइनस एक्स। हेलो, क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, रूट m। हाँ, रूट m, सॉरी। सो x इंटू रूट छोटो m इज d रूट बड़ो m माइनस एक्स रूट बड़ो m। यस और नो? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? d रूट बड़ो m बाय बड़ो m प्लस छोटो m रूट का। यस और नो? यस और नो? यस और नो? भाई करेक्ट है ना? हेलो, करेक्ट है ना भाई? यस सर। उसी के बेसिस पर अगर मैं d माइनस एक्स निकालू, d माइनस एक्स, तो ये आंसर आएगा d रूट छोटो m अपॉन रूट बड़ो m प्लस रूट छोटो m। डू यू अग्री विद मी? d माइनस एक्स करना है। यस और नो? यस सर। तो पहला डिस्टेंस x है, दूसरा डिस्टेंस d माइनस एक्स है, इतना तक मिल गया। अच्छा, इसको शॉर्टकट आता है किसी को? क्या मैंने सिखाया इसका शॉर्टकट? हेलो, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, आपको नहीं आया है? दिस क्वेश्चन हैज कम? नो नहीं, सर। नहीं, ये नहीं आया। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव डेवलप दैट ट्रिक। इसका ट्रिक ये है कि जब भी आपको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मांगेगा ना, तो एक उसका ट्रिक है, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर ऑफ एक्स। एक्स विल बी डी अपॉन रूट ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस 1। अच्छा, हु इज m2 एंड हु इज m1? डी तो मालूम है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस है। m2 इज द मास फ्रॉम विच x इज नॉट मेजर्ड। अरे भैया, कैन आई से x इज द मास? यहां से दिस विल बी m1 जहां से x का मेजरमेंट लेते हैं, एंड m2 इज द मास जहां से x मेजर्ड नहीं है। बराबर है क्या? हेलो 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 हेलो। यार ये सीधा शॉर्टकट लगाएंगे, आंसर क्या रहेगा? आंसर चलो x का वैल्यू बताओ इधर। शॉर्टकट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? d अपॉन रूट ऑफ स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस वन बाहर है रूट के। हेलो, अरे हाँ ना बोलो, करेक्ट है क्या? देखो एलसीएम लो इसको, वही आंसर आएगा, सेम यही आंसर आएगा ना आपको। गेटिंग इट? यस सर। तो ये चीज नोट करना, ये बहुत फटाफट हो जाएगा। x इज d अपॉन रूट ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस 1। व्हाट इज m2? या तो मैं यहाँ पर एक नोट लिख लेता हूँ कि x इज मेजर्ड फ्रॉम वेयर मैन? m1। m1, करेक्ट है ना? सीधा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो।
तो ये सब मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ये ट्रिक याद रखना, दिस ट्रिक इफ यू रिमेंबर यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर। ओके ना, ठीक है। अब बट ये थोड़ी फाइंड करना है भाई इस पॉइंट पे क्या निकालने का है, इस पॉइंट पे क्या निकालने का है, पी निकालने का। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये बड़ो एम है, ये छोटो एम है, इस पॉइंट पी पे क्या निकालने का है, वी निकालने का है, वी एट पोटेंशियल निकालने का कितना है। कैन आई टेक दिस डिस्टेंस एज एक्स एंड दिस डिस्टेंस विल बिकम डी माइनस एक्स। व्हाट इज पोटेंशियल का फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला तो बोलो यार। माइनस GM/R। हाँ, तो इट इज माइनस जी बड़ो एम बाय एक्स माइनस जी छोटो एम बाय डी माइनस एक्स। सही है क्या? हेलो, अब सीधा वैल्यू डालते हैं हम लोग, कितना हो गया देखो, माइनस जी बड़ो एम बाय एक्स, एक्स की जगह क्या लेगा, डी रूट एम अपॉन रूट एम बड़ो एम प्लस रूट छोटो एम, ये तो सबको मालूम है, एंड माइनस जी छोटो एम बाय डी रूट छोटो एम अपॉन रूट बड़ो एम प्लस रूट छोटो एम। हेलो, कुछ दिख रहा है ना? यस और नो? अच्छा, कॉमन क्या निकलेगा, माइनस जी बाई डी कॉमन निकाला और नीचे से रूट बड़ो एम प्लस रूट छोटो एम कॉमन निकाला। यस और नो? हेलो 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 हेलो, यस और नो? यस। देखो ये क्या बचा है, यहाँ पे क्या बचा, एम बाय रूट बड़ो एम एंड प्लस एम बाय रूट छोटो एम। यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा कैंसिल होने के बाद में, भाई बोलो ना क्या बचेगा, रूट बड़ो एम प्लस रूट प्लस छोटो एम, दैट विल बी स्क्वायर ऑफ दैट थिंग बिकॉज बाहर भी वही टर्म है। हेलो यार, समझा क्या? हेलो, ये आंसर है ना, गेटिंग इट और नॉट? तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, पहली बात ये ट्रिक जो है ये पहली बात याद रखनी है, और फिर सीधा वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर। इसको मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट, ऑल्सो इंपॉर्टेंट है जेई। ओके, जेई में तो 2 स्टेप वाले तो आते ही है, नीट के अंदर थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा ये। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? हेलो यार बोलो, क्लियर है ना? तो ध्यान रखो ये सब चीज का, अभी इधर आ चुका है, पहले आप लोग में नहीं आया ये सब, दैट वी सी। हेलो 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 हेलो, गेटिंग इट? समझे ना? अच्छा, कभी कभी है ना आपको क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों के बीच में ऐसे भी पॉइंट फाइंड करो, सपोज ये बड़ो एम है और ये छोटो एम है और दोनों के बीच में, सपोज दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, और पूछेगा एक पॉइंट ऐसे है वह पोटेंशियल 0 है। हेलो हेलो, ये सम अलग है हाँ? अरे यार बोलो, ये तो E0 था ना ये वाले सम में, अब ये सम में क्या क्या फाइंड करना है, क्या है, क्या फाइंड करना है, ऐसे पॉइंट फाइंड करना है वेयर हु इज 0, V. C0। तो V का फॉर्मूला क्या है बच्चा, कैन आई से पोटेंशियल ड्यू टू 1 इज बैलेंसिंग पोटेंशियल ड्यू टू 2। हेलो, So, but is that Yes, even sir. एक possible? मिनट एक 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 मिनट, क्या पोटेंशियल 0 हो सकता है ये पॉइंट पर? हेलो, No. हाँ, तो इट विल नॉट एग्जिस्ट ओनली ना। हेलो, आर यू गेटिंग इट, व्हाट्स हैपनिंग? बिकॉज दोनों कौन सी साइन है बेटा, दोनों कौन सी साइन है, दोनों माइनस साइन है ना। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? भाई अगर 0 होना है तो एक के कारण पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और एक के कारण पोटेंशियल क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ना। हेलो, Yes. तो ये सम जो है ना, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये सेम सम जो है इसमें आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। आप लोग कंफ्यूज ना करें विथ इन ग्रेविटेशन, देखो दो कॉन्सेप्ट्स है, ये सेम सम जो है ना आपको ग्रेविटेशन में भी मिलेगा, और कौन से चैप्टर में मिलेगा, तो वहां पर मास की जगह क्या है, चार्जेस है, तो Charge. वहां पर ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा।
बट यहाँ पर हेलो हेलो, यू गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. हाँ, ये सेम सम इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी रिपीट होगा, बट वहां पर पोटेंशियल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, दूसरा चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पर दोनों जगह नेगेटिव है, masses are there, so potential will be negative, so it is not possible that the potential should be zero. ध्यान रखना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 पर आता है। The height of the surface of the earth where the gravitational intensity is reduced to 1%. कितना हो गया ग्रेविटी? कितना हो गया ग्रेविटी? हेलो, कैन आई से GH is becoming 1% of G? सही है ना? मतलब Yes. कितना ऊपर जाना है वह तो। अच्छा, GH का फॉर्मूला क्या है? Yes or no? Yes or no? GH upon G is 1/100. Take root on all sides. Yes or no? तो ये कितना हो गया? The value, the height above the surface of the earth. तो छोटो r को लिखेंगे r plus h. कितना होगा h? हेलो, मिल गया ना? Yes or no? Yes, sir. ये फॉर्मूला ध्यान रखना इसका। फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट ओवर हियर। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट को दिमाग नहीं लगाना है आपको, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 13, the height from the surface of the earth at which gravitational potential of the ball of mass is half of that of the center of the earth. ओके, मजा आएगा। देखो अर्थ का शेप क्या है? अर्थ का शेप क्या है? अर्थ का शेप क्या है भाई? हेलो यार, बोलते ही नहीं हो तुम लोग। अर्थ का शेप इज सॉलिड स्फीयर ना? हेलो, Yes, sir. कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? यार कल एग्जाम दिया आप लोग ने, क्या कर रहे हो? याद है ना? हेलो, Yes, sir. -3/2 times GM by बड़ो r. What is potential at the surface? वही। And can anyone tell me what is potential over here? कितना होता है? Minus GM by small r. Small r. क्लियर है ना? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ at which gravitational potential at that point above the surface of the earth, madam, potential outside is half of that of V center. सही है ना? अरे भाई ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ। हेलो हेलो। Yes, sir. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -GM by छोटो r, छोटो r could be written as r plus h is half of -3/2 GM by capital R. Yes or no? हेलो, तो कैन आई से 3, क्या लिखा जाएगा? r plus h should become 4/3r. So h will become 1/3r. क्लियर है ना? Yes, sir. ये ध्यान रखना, अर्थ का जो शेप है दैट इज सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का पूरा डेटा यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 15,
A planet has twice the density of that of the Earth. मतलब rho of planet is twice of rho of Earth. But the acceleration due to gravity is same. Gravity on the planet is same as that of Earth. The radius in terms of radius of the planet in terms of radius of the Earth. ये मांगता है आपको, ठीक है. अच्छा, डज एनीवन नो ग्रेविटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रो? किसी को आता है फॉर्मूला? ये याद है 4/3 0 पाई आर. हेलो, डज एनीवन नो? डज एनीवन नो हाउ डिड दिस कम? यार बोलो. जी इज जी एम बाय आर स्क्वायर ना बेटा. क्या करते हो यार? है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर. ये आया ना 4/3 0 पाई आर. हेलो बोलो. They should be learned by heart, huh? So G, हेलो देखो ना, G सेम है यहाँ पर. G सेम है, मतलब ये 1 टाइम है, सही है. 4/3 G तो कांस्टेंट ही है. रो कितने गुना हुए? पाई भी सेम है. रो कितना टाइम है? डबल है. तो आर कितना टाइम हो जाएगा? तो ये नीचे चला जाएगा ना. हेलो, दिस शुड गो डाउन ना ऑन दैट साइड. यस और नो? Yes. So R should be proportional to what? Half times, huh? Yes or no? Can I say radius of the planet is half times radius of the Earth? कुछ समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? I just plug in the numbers, man. Nothing else. Are you getting it? Hello? तो समझा ना सब लोग को? Yeah. So this is how you do it. Rather than wasting your time and everything, यार फटाफट plug in करो to get the resultant answer. Question number 16 is good question. A satellite is seen every 6 hours over equator. It is known that it rotates opposite to that of Earth's direction. मतलब ठीक है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ. मैं काइनेमैटिक्स पे जाता हूँ, रोटेशनल काइनेमैटिक्स पे, आपको समझ में आएगा. सपोज दो लोग एक रेस लगा रहे हैं. एक रेसिंग ट्रैक है गोल, ऐसे राउंड. एक इंसान ऐसे जा रहा है और एक इंसान ऐसे जा रहा है. तो आपको पूछेगा हाउ मच टाइम आफ्टर विच दे विल मीट. हेलो, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे सपोज दे मीट हियर इज द मीटिंग पॉइंट. कैन आई से इसने इतना कवर किया और इसने इतना कवर किया? यस और नो? अरे भाई बोलो, मैं समझाना चाह रहा हूँ कुछ. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. कैन आई से व्हाट इज θ1 प्लस θ2? θ1 प्लस θ2 का वैल्यू कितना है? जल्दी जल्दी बोलो यार. पाई रेडियन. 2 पाई है ना. अच्छा, दे आर इन विच डायरेक्शन बच्चा? ऑपोजिट. अगर सेम डायरेक्शन में होते तो क्या लिखता मैं? θ1 माइनस θ2 इज 2 पाई. रिलेटिव मोशन ले रहा हूँ ना मैं. एक को रोक दिया, दूसरे को उल्टा करके दे दिया. यस और नो? सो यार कुछ बोलो ना, ये इजी है एकदम. अच्छा, थीटा को लिख सकता हूँ मैं ओमेगा टी. आर यू गेटिंग इट? यस और नो? सो अच्छा, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय बड़ो टी. इसका टाइम पीरियड अकेला भागेगा तो इतना रहेगा. इसका टाइम पीरियड 2 पाई. सो टी विल बिकम कितना हो जाएगा यार? हाँ, T1 T2 अपॉन प्लस T1 प्लस T2 ना. ये अच्छा, सेम डायरेक्शन होगा तो क्या आएगा मालूम है? ये माइनस आएगा. क्लियर है? यस और नो? तो अभी है ना, थोड़ा हम लोग है ना शॉर्टकट्स पे ज्यादा काम करेंगे, बिकॉज पुराने चैप्टर्स हमको आते हैं, तो उसी का हेल्प लेके हम लोग शॉर्टकट्स पे काम कर सकते हैं. देखो, हमको कन्वेंशनल मेथड को छोड़ना नहीं है, बट दैट इज द मेन मेथड.
क्योंकि आपने कभी भूल गया, कुछ हो गया, तो यू कैन रिलाई टू द कन्वेंशनल मेथड. ओके, दिस विल सेव योर टाइम. अच्छा चलो यार, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फॉर्मूला तो मुझे मालूम है, रिलेटिव टाइम का वैल्यू कितना रहेगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2. पहले वाले का टाइम पीरियड कितना है? हेलो, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए. ठीक है, हम लोग T1 ढूंढ के आंसर. कैन आई से टाइम आफ्टर विच दे आर सीन इज 6 आवर्स? अरे अर्थ का टाइम कितना है? 24 है. T2 मालूम नहीं है. कैन आई से 24 प्लस T2? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? क्लियर है क्या? Yes, sir. ये हो जाएगा 6 4 24. ये 4 T2 इज इक्वल टू T2 प्लस 24. तो T2 का वैल्यू कितना है? तो ओमेगा कितना रहेगा उसका? हेलो, बोलो. Yes, sir. ऐसे. अच्छा, ये सेम डायरेक्शन में होता तो माइनस साइन लिखता हूँ मैं फिर. ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है. अच्छा, इसमें याद है आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना टाइम पीरियड होता है? Infinity. 20. नहीं नहीं, 24 आवर्स होता है ना उसका जियो 24 स्टेशन का. hours. Yes. तो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस नीचे आएगा, मतलब 24 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा जियो में? यार बोलो. इन्फिनिटी रहेगा ना, मतलब दैट आई कैन से इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. हेलो, कुछ समझ आया क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हेलो, हेलो. जब भी किसी का टाइम पीरियड इन्फिनिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. यस और नो? यस और नो? अरे यार कुछ बोलो. Yes, sir. एक और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट इज दैट 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी आता है. उसके सपोज हमने पेंडुलम डाल दिया और एक लिफ्ट जो है इट इज फॉलिंग डाउन विद ग्रेविटी. तो इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा? यार सब ये सब कर चुके हैं आप लोग, ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा? जी इफेक्टिव होता है ना यहाँ पे, याद है? जी माइनस जी. हेलो, जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा. सो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी. टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो गया, मतलब दिस पेंडुलम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ. मतलब जो पोजीशन पे वो रहेगा वही रुक जाएगा वो पोजीशन पे. यस और नो? Yes, sir. हम लोग है ना, पुराना जितना है उसको भूलना नहीं है भाई, उसको यूज करना है. अभी एसएचएम में भी बहुत सारी चीजें यूज होगी. फिर हम लोग स्विच करेंगे करंट पे, तो वो अलग ही दुनिया है. करंट, इलेक्ट्रोस्टैट, सीएमआई एंड ऑल दैट स्टफ, उसमें भी बहुत मजा आएगा. ये चीज एंड पे है, तो हम लोग ने जो पुराना बुक किया है उसको यूज करेंगे ना हम लोग. थोड़ा सी है ना कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस किया करो, को समझ में. आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 20. अच्छा, ये 18th वाला क्वेश्चन जो है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. आई डू द डेरिवेशन, आई डू द डेरिवेशन ऑफ दिस. क्या बोलना चाह रहा है? ये एक टनल है विच इज डक. अच्छा, मैं आपको है ना पेज नंबर दे देता हूँ इस डेरिवेशन का. मैं डेरिवेशन यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ, बट इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 375. मतलब ये जो डेरिवेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में प्रूव किया गया है. हेलो, डीसी पांडे का कौन सा पेज नंबर? 375 पर ये चीज प्रूव की गई है. मैं वही प्रूफ यहाँ पे लगा रहा हूँ और फिर आपको आंसर देता हूँ मैं. एक्चुअल आंसर आपको मालूम है कि अगर कोई भी चीज टनल अगर हम लोग डिग करते हैं सरफेस ऑफ और एक बॉल इफ यू लीव, देन व्हाट इज द टाइम पीरियड? डज एनीवन नो? वी हैव डन दिस इन द सिनॉप्सिस. नहीं किया है? ठीक है ठीक है, चलो इधर देखो, इधर देखो. एवरीवन जस्ट पे अटेंशन प्लीज. दिस इज द अर्थ. या एवरीवन जस्ट पे अटेंशन प्लीज. सपोज यहां से मैंने एक टनल बनाया, टनल बना के मैंने एक बॉल छोड़ दिया यहाँ से. सपोज बॉल राइट नाउ इज ओवर हियर. कैन आई से इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ small r, and this is angle is theta, and let this distance from इसका सेंटर भी x. हेलो, अर्थ का सेंटर O है, इसका सेंटर C है. चलेगा? यस और नो? Yes, sir.
अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द अभी बॉल इधर है पॉइंट पी, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट पॉइंट पी? अर्थ का अंदर का पॉइंट, सॉलिड स्फीयर के अंदर के पॉइंट का ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है यार, बोलो ना। याद है? जी एम आर बाय आर क्यूब। हेलो 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 यार, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। ये याद आ रहा है कुछ? मैं कैसे पढ़ाऊँ आप लोग को? यस और नो? Yes. क्लियर है? Yes, sir. Okay, so this is where what is bado m? Mass of the earth, and this is mass of the ball. Huh? So can I say the force experienced at this point P will become m into ep? That will become g bado m choto r by r cube. Hello? और ये फोर्स कैसे लगेगा? ये फोर्स ऐसे रहेगा ना मेरा बच्चा। हेलो, इसको खींचेगा ना? यस और नो? Yes, sir. This is the force at this point. ये फोर्स एट पॉइंट पी है, ये इसको खींच रहा है अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ खिंचाव रहता है, आपको मालूम है। बट हमको तो एस एच एम एक्सर्ट करना है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि दिस बॉल व्हेन इट इज लेफ्ट टू अ टनल इट विल एग्जीक्यूट एस एच एम। वो आगे आएगा, एस एच एम चैप्टर में आएगा, बट यहाँ पर सिर्फ हम लोग वो डेटा पकड़ के चलते हैं, ठीक है। अब कैन आई से, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फोर्स अलोंग द टनल? फोर्स अलोंग द टनल, मतलब ये फोर्स एफ पी नहीं चाहिए, ये कंपोनेंट बनता है इसका। ये एक्स डायरेक्शन पकड़ लूं मैं, अगर इसको मैं एक्स एक्सिस पकड़ता हूं तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन? FP sin theta. एफ पी साइन थीटा। हेलो, एंड यहां पर है ना कुछ बुक्स में माइनस साइन डाला रहता है, इंडिकेटिंग दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आर यू गेटिंग इट? या फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन? यस और नो? यार बोलो, क्लियर है? Yes. ये एफ एक्स को लिखते हैं हम लोग माइनस एफ पी इज जी एम एम आर आर क्यूब इंटू साइन थीटो। व्हाट इज साइन थीटा इन द डायग्राम? यार बोलो ना, साइन थीटा इन द डायग्राम, साइन थीटा इन द डायग्राम इज एक्स बाय आर ना? हेलो, एक्स बाय आर। यार रिजल्ट याद हो जाएगा यार आप लोग को, एक्स बाय आर, एक्स बाय विच आर? मैंने गलती कर दी, एक्स बाय विच आर? छोटो आर। यस और नो? तो ये छोटो आर और छोटो आर कैंसिल हो गया, मजा आएगा। देखो एक बहुत मजेदार चीज मिलेगी, एफ इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय आर क्यूब इंटू एक्स। ये किसके साथ मैच कर रहा है? मैंने आपको एस एच एम का पहचान बताया था, दे आईडी कार्ड उसका। व्हाट इज द आईडी कार्ड ऑफ एस एच एम? minus kx. वेरी गुड, माइनस के एक्स। रीस्टोरिंग फोर्स इज माइनस के एक्स। याद आ रहा है? हेलो, सो व्हाट विल बी के विल बी दिस टर्म ना? हेलो, कुछ बोलो, ये काम लगेगा आपको आगे, ऐसा नहीं है कि कुछ वेस्ट में कर रहा हूं मैं कुछ। तो के का वैल्यू कितना रहेगा? बट के का जनरल फॉर्मूला मालूम है आपको? डू यू रिमेंबर? के इज एम ओमेगा स्क्वायर। हेलो हेलो सर, व्हाट आर यू डूइंग? आई कैन अंडरस्टैंड ओनली। यस और नो? के इज एम ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? बट जीएम को लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर, आर क्यूब। तो ये हो जाएगा जी बाय आर। कैन आई से टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ आर बाई जी। दैट आंसर विल कम 84.6 मिनट्स। कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ याद आ रहा है आपको? मतलब अगर मैं यहां से एक बॉल छोड़ू ना, ये टनल से, इफ आई लीव अ बॉल it will go and return back because it is performing what sir? SHM. SHM with the time period कितना रहेगा? पूरा टाइम पीरियड कितना रहेगा आने और जाने का? हेलो, टू एंड फ्रो मोशन को टाइम लगेगा 84.6 मिनट्स। 84.6 मिनट्स का ये फॉर्मूला है एक्चुअली। ये सब डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, बट मैंने सिखा दिया आपको तो ताकि आप भूल मत जाओ।
तो खाली आपको पूछा है कि टाइम टेकन टू रीच दी अदर एंड कितना है, कोई बता सकता है कितना टाइम रहेगा? भाई एक सिरे से दूसरे एंड पे जाना है, कितना टाइम लगेगा? half 42 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। यस और नो? यस और नो? हेलो? Yes, sir. So this is how you do it, and the derivation is given in DC Pandey on page number 375. जो आगे हम लोग SHM में काम करेंगे, अभी ये सेम सम इधर। So whenever a tunnel is dug anywhere, हाँ, टनल जरूरी नहीं है इधर डिग करेगा, अगर इधर से भी डिग करेगा ना टनल सेंटर से, तो टाइम उतना ही लगने वाला है, बिकॉज फोर्स बढ़ जाएगा उसका। तो एफ इज माइनस के एक्स एडजस्ट करके टाइम पीरियड। सो एनीवेयर इफ यू डिग अ टनल it will execute simple harmonic motion with a time period of 2 pi root of r by g, 2 pi root of r by g, 2 pi root of r by g. That is 84.6 minutes. Are you getting it? ध्यान रखना प्लीज। गेटिंग इट ना? Yes, ओके, sir. तो इस चीज अगर नीट में होती तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट दे देता। आप लोग को थोड़ा समझ में आता है इसलिए वी आर डूइंग फाइन। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। The gravitational potential energy at a distance of r is u. The weight at a distance of 2r. Weight मांगता है at a distance of 2r. What is weight equivalent to? Your force of gravity, ना? Hello? Weight Yes. मतलब क्या? Indirectly he is asking gravitational force at a distance of 2r. अच्छा, does anyone know the formula for gravitational potential energy? The earth is minus gmm by r, ना? याद आ रहा है कुछ यार? Potential energy at a distance of r from the earth is gmm by r is u given. बराबर है क्या? हेलो? Yes, sir. नहीं से माइनस जी एम जो कांस्टेंट है ना अर्थ का विल बिकम यू आर बाई छोटो एम। कहाँ से निकालना? गेटिंग इट? गेटिंग इट? गेटिंग इट? गेटिंग इट? अच्छा अच्छा अच्छा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स? यार कुछ याद आ रहा है क्या? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. और यहाँ पर जी एम की जगह, अच्छा फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव ओनली, तो यहाँ पर माइनस जी एम की जगह ये उठा के डाल देंगे हम लोग, यू आर बाई एम इंटू एम। कैन एनीवन टेल मी डिस्टेंस कितना है? कितने डिस्टेंस पर मांग रहा है? कितने डिस्टेंस पर ही इज आस्किंग यू? 2 आर। 2 आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अरे भाई याद है ना, ये आर डैश पकड़ लो। यस और नो? कंफ्यूज हो रहे हो तो यस और नो? यस और नो? क्लियर है? ये Yes. एम और ये एम कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस यू बाय 4r। डिड यू गेट इट? और माइनस माइनस बाहर से कैंसिल हो गया ना, ये भी माइनस ही तो था, ये माइनस था ना, ये प्लस हो जाएगा। गेटिंग इट? गेटिंग इट और नॉट? समझा क्या? माइनस साइन का आप टेंशन मत लो, ही इज आस्किंग ओनली द मैग्नीट्यूड, तो स्टिक योरसेल्फ टू द मैग्नीट्यूड फॉर्मेट ओनली। 23rd पे आते हैं। एवरी डे 30 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस आर अ मस्ट। इसके बिना क्या करेंगे यार? और यही चीज आपको बार बार फिर से एकदम ओके फेयर बुक के अंदर आपको बराबर से काम करना है। मतलब मैंने जो सम्स कराया वो भी फिर से करना है, सिनॉप्सिस रिवाइज करना है, फॉर्मूला शीट बनाना है। The gravity, the rotation of the earth of radius r speeds up to such a value that the man of latitude 60 degree feels weightlessness. चलो भाई, जी लैम्बडा का फॉर्मूला याद है? G minus omega square r cos square lambda. और स्क्वायर लैम्बडा, लैम्बडा कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। बराबर है क्या? ये हुआ है ना? हेलो? अच्छा, वेटलेसनेस मतलब क्या जीरो हो गया? G G lambda. lambda जी लैम्बडा जीरो हो गया ना, जी एट 60 डिग्री बिकम्स इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो मंग हो गया, तो ये हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। cos 60 इज हाफ का स्क्वायर 1/4 हो गया ना। यस और नो? हेलो? टाइम पीरियड क्या रहेगा?
यस और नो? सही बोलो. Yes, sir. So this is a formula based only, nothing else. $25. An artificial satellite is moving in a circular orbit, has total energy E naught. The potential and kinetic. किसी को याद है synopsis में? यार बोलो. ये M है, एक सैटेलाइट. मैंने आपको ये सब चीजें फ्राइडे के सिनॉप्सिस में भेजी है भाई. कैन एनीवन टेल मी इस सैटेलाइट का टोटल एनर्जी कितना होता है? व्हाट इज टोटल एनर्जी फॉर अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट? बोलो यार. Minus GM by GM by 2R, 2 छोटो r. सैटेलाइट एक था, सैटेलाइट एट रेस्ट, याद है ना, ऑन द अर्थ सरफेस. यार बोलो. Yes, sir. और एक है सैटेलाइट रिवॉल्विंग. तो टोटल एनर्जी रिवॉल्विंग इतना था. अच्छा, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था? GMM by 2R. जीएमएम बाई 2R था. कैसे आता था? हाफ एम वीसी स्क्वायर से आता था, याद है ना? एंड व्हाट इज वीसी? याद है किसी को? ये आएगा जीएमएम बाई 2R से. यस और नो? एंड पोटेंशियल एनर्जी तो सबको मालूम है कितना होता है. चलो रिलेशन बनाते हैं. कैन आई से, अगर ये बोल रहा है ये ई नॉट है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? Minus E naught. Kinetic energy will be minus E naught. And potential energy will be 2 E naught. 2 E naught ना. अरे भाई, अगर ये E naught दिया है माइनस साइन के साथ में, तो ये तो माइनस E naught होगा. और ये कितना रहेगा? 2 E naught. Are you getting it? हेलो हेलो. गेम हैज चेंज ना. वो प्लस है तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस है तो प्लस रहेगा. यस और नो? हेलो हेलो हेलो. करेंगे ना? चीज दी हुई है. क्वेश्चन नंबर वेलकम टू क्वेश्चन नंबर So, but how can kinetic energy be negative? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दिया हुआ है ना बेटा. इट इज नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव. ये कितना दिया है? ये नॉट दिया है ना. हेलो. Yes, sir. अगर वो माइनस ई नॉट दिया रहता तो E naught. हाँ, तो ई नॉट होता. यू मैनिपुलेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. इट इज नॉट अबाउट माइनस. ही इज टेकन माइनस इनसाइड दिस. यू गेटिंग इट? हेलो. Yes, sir. He is taken that minus sign inside it only. You need not worry about that thing. Question के अकॉर्डिंग में मैनिपुलेट करना है. चलो भाई. $28 पर आता है. ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन. assuming earth to be a constant density, point out which following curves shows variation of acceleration due to gravity from the earth's surface to far away from the center. चलो बोलो क्या रहेगा? A B C D. क्या? C रहेगा ना. Remember ना, this is G center, this is GD, and this is GH, and this is G on the surface. बोलो भाई. हेलो. ये कर चुके हैं हम लोग पहले भी. 8. गेटिंग ना. 30 पर आता है. 30 अगेन इट इज ग्राफ बेस्ड ओनली. ये भी इजी है. क्या रहेगा आंसर? अर्थ का पोटेंशियल ABCD. यू नो द ग्राफ बाय हार्ट ओनली. हेलो. अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर का ग्राफ सी होता है ना. ये -3/2 रहेगा और ये -1 रहेगा और ये फिर बाद में तो कम हो जाएगा. यस और नो? So this is how you do it. We have time again, at least 5-10 minutes more I'll do.
इजी है. 32 पर आता है. 32. चलो बोलो. Which of the following graph represents gravitational field with a spherical shell? स्पेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी होती है? शेल के अंदर शेल 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 0. 0 होती है और बाहर आके फिर बाद में इनवर्स हो जाता है. ABCD डी बनेगा. ये 0 है, याद है ना? इनवर्स होता है ये. दिस इज ऑल्सो सेम. कर चुके हैं पहले. ओके. 33 पर आता है. What will be the velocity of a particle projected so that height becomes equal to the radius? कौन सा सम अप्लाई करना है? मैंने ये चीज तो इंट्रोडक्टरी में कहा है, याद है? डिक्रीज इन KE. हेलो, डू यू रिमेम्बर? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला? mgh/1 + h/r. H का वैल्यू कितना डालेंगे? कितना वैल्यू डालेंगे R का? H का R ना. हेलो, यस और नो? Yes. हेलो, Yes, sir. बोलो ना यार, इजी है ये चीज. तो H का वैल्यू R डाल देना, यू विल गेट द वैल्यू. नथिंग एल्स. वी हैव डन दिस बिफोर आल्सो. यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर. ये चीज पहले भी कर चुका है, कोई टेंशन नहीं है. नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर. आई डोंट हैव क्वेश्चंस ओनली मैन, ऑल आर इजी क्वेश्चंस ओनली. नो यार, समझ में नहीं आ रहा. 35 पर आता है. सेम इजी है ये. 35 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्बिटल रेडियस? यू नो t square is proportional to r cube. So t square will become k times of r cube. So t square upon r cube is k, which is nothing but a what, sir? What, sir? Constant. So can I say t square upon r cube is constant? Na? It doesn't depend on anything. Yes or no? Yes or no? हेलो. Yes, sir. अच्छा, ये आता कहाँ से? टी का फॉर्मूला याद है आपको? टी का फॉर्मूला याद है किसी को? टी इज 2 इक्वल pi टू under root r³ by gr². ये है. यस और नो? ये है. कैन आई से 2 पाई बाय या टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय gm r cube. Can I say t square by r cube will become, and this is your k. Got it ना? तो ग्राफ अगर मैं बनाऊं t स्क्वायर वर्सेस r क्यूब का, तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा. यस और नो? एंड स्लोप ये रहेगा, k रहेगा. यस और नो? भाई बोलो. तो कभी कभी स्लोप भी मांगता है, तो स्लोप इज दिस. द स्लोप. सही है ना? ओके. गॉट इट भाई, गॉट इट. चलो यार, 38. Hey, 2 questions more. I told you till 30 बढ़ी है, वो बढ़ता ही जा रहा है. ओके, ये सम कर लेते हैं. चलो 37 इजी है. अ बॉडी ऑन मास एंड इज केप्ट एट अ स्मॉल हाइट h above the earth surface. कुछ दम नहीं है यार, इधर देखो. कैन आई से बॉडी अगर अर्थ के सरफेस पे है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है? कितना है? हेलो, यस और नो? हेलो. Yes, sir. ओके. अभी क्या बोल रहा है कि छोटा सी हाइट ऊपर लेके गए. दिस हाइट इज वेरी स्मॉल, व्हिच इज वेरी लेस देन r. कैन आई से और थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, that potential will be minus gmm by r, which is there due to the earth surface, plus mgh. Are you getting it? Are you getting it? Yes or no? ये मिलेगा ना? Yes or no? Yes. mgh is due to the
difference in the height. This will be the increase in potential energy. तो जैसे ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा. 38. A particle is projected vertically upward from the Earth's surface with a kinetic energy equal to half the minimum velocity needed to escape. अच्छा वाला समय, ध्यान देना, ये अर्थ है. इसको हम लोग कितना स्पीड दे रहे हैं, कितना स्पीड दे रहे हैं भाई? एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या है? So the kinetic energy is half. Kinetic energy is half of the. Okay, sorry. So kinetic energy becomes half of kinetic energy of escape. So velocity will become कितना हो जाएगा? सही है ना? Because बाबा kinetic energy is proportional to v square or not. तो अगर मैं इस चीज का रूट ले लूंगा तो रूट, ये सही है क्या? हेलो Yes. भाई बोलो ना यार, ये करेक्ट है क्या? Sir. Can I say this is nothing but root 2 times of this? बोलो, क्लियर है? अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस्केप स्पीड? एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या है? Under 2 gm/h. 2 gm/h. बट इसको लिख सकता हूँ रूट 2 gr. चलेगा भाई? हेलो, gm is gr square ना? Are you getting it? Yes. तो इतना स्पीड से उसको फेंका है और कह रहा है द हाइट टू विच इट राइजेस. अरे कुछ भी नहीं है यार. एच मैक्सिमम कर चुके हैं ना पहले. डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. हाफ एम वी स्क्वायर इज एम जी एच 1 + h/r. तो हाफ एम वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा भाई? इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा बेटा? Yeah. जी आर हो जाएगा. कितना होता है ये? r/2. कैसा नो तो सॉल्व करेंगे. कितना आता है? r + h. r + h is equal to 2h. So h will become equal to r. हेलो हेलो बेटा, खाना बोलो, करेक्ट है क्या? Yes. So this is how we do it. चलो लास्ट सम. ओके, उसके बाद में हम लोग 40 से नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे. तो नेक्स्ट टाइम सब्जेक्ट भी आराम से शुरू हो जाएगा, भी डन होंगी. ठीक है. 39th question. Pay attention to me. A solid uniform solid sphere of mass m and radius r is surrounded by a thin spherical shell. So there is a solid sphere of mass m and radius r is surrounded by a shell of mass m and radius 2r. इसका रेडियस 2r है. ठीक है, इसका रेडियस r है यहाँ से, और इसका रेडियस 2r है. अब आपको मांग रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 r. 1.5 r कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है? वो पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है बेटा? Outside the sphere, within the shell. हाँ, तो यहाँ पर किधर रहेगा? कैन आई से अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द शेल, क्या मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर सकता हूँ? एक ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, ये पॉइंट है, बराबर है क्या? ये पॉइंट पी है, सही है ना? और दूसरा वाला
Can I say this point P is inside the shell? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Can anyone tell me what is due to the solid sphere? यार बोलो ना. G m by distance square ना. Distance कितना 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25 r स्क्वायर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड इसके कारण ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितना होता है इनसाइड द शेल? 0 होता है. यस और नो? हेलो. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? gm by 2.25 r square. That will not be this answer ना. ये 2.25 थोड़ी आता है. Yes or no? हेलो. Yes, sir. अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r 2.5 r. 2.5 r किसके बाहर है भाई? ये पॉइंट तो डन ना. ये पॉइंट के बारे में बात करो. 2.5 r किसके बाहर है? Outside the hollow sphere. दोनों के बाहर है. दोनों का बाहर है. तो कैन आई से इसके लिए कैन आई कॉन्सेंट्रेट द होल मास एट द सेंटर? अरे बाबा बोलो. कैन आई से पूरे ये जो चीज है ना, पूरा ये जो चीज है, इसको अगर बाहर की पॉइंट है तो कैन आई से पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर है. एंड हाउ मच इज द नेट मास? 2m. एंड कैन आई से व्हाट इज द डिस्टेंस एट 2.5 r? अरे यार बोलो ना. g m by 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. कितना हो जाएगा? 2 by 6.25. 2 by 6.25 मतलब नीचे को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? 4. 4 से, और ऊपर को 4 से. तो ये 8 by 25 हो जाएगा ना. यस और नो? हेलो यार बोलो ना. Yeah, so ये मैच कर रहा है ना अगर? बिकॉज अगर बाहर का पॉइंट है तो यू कैन अज्यूम दैट द होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर एंड यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So this is how we do the sums of gravitation. It is pretty simple based on formulas. Next time we'll continue with the objective, and the subjective also we'll start. Subjective में I think total there are 16-17 questions only. देखते हैं हम लोग का हो जाएगा आराम से. ठीक है, चलो, thank you, take care, bye. Bye, sir. Thank you. Thank you. So, Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.